أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fire. جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں، ان میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور شادیاں کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات عام طور پر انسانوں کی نظروں سے اجھل رہتے ہیں، مگر بعض موقعوں پر یہ انسان کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں سنائی جانے والی کہانیاں، بزرگوں کے تجربات اور کچھ جدید واقعات میں جنات سے متعلق حیرت انگیز واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ دراصل صدیوں سے انسان اس مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل، مصر اور اکاد میں جادو اور روحانی علوم کے ذریعہ جن اور بھوت سے رابطہ کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسلام سے قبل اور بعد بھی کچھ لوگ جنات سے طاقت حاصل کرنے کے لیے سفلی عملیات اور عجیب و غریب پر اسرار علوم کا سہارا لیتے تھے۔ مغرب میں آج بھی لوگ اویجا بورڈ اور سیانس جیسے طریقوں سے جنات یا روح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں بعض ایسے مشہور شخصیات کے متعلق لکھا گیا ہے جو جنات اور ہمزات سے رابطہ کر کے ان سے مختلف کام بھی لیا کرتے تھے۔ نیشا پور کے مشہور فقیہ اور صوفی ابو الفضل محمد الطبسی کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مختلف نسل کے جنات سے گفتگو کیا کرتے اور ان سے عملیات حاصل کر کے اسے نیک مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے خود اپنی کتاب الشامل فی البحر الکامل میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشہور فلسفی اور تصوف کے امام غزالی نے ایک مرتبہ ابو الفضل طبسی سے ملاقات کی تو ان سے درخواست کیا کہ وہ اپنے جنات دکھائیں۔ اس پر الطبسی نے انہیں دیوار پر ایک سایہ دکھایا جو عجیب و غریب اور لمبا چوڑا انسان نما تھا۔ امام غزالی نے اس جن سے باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سایہ خاموش رہا۔ 18ویں صدی میں حمص کے ایک مشہور شاعر عبدالسلام بن رغبان تاریخ کا ایک پر اسرار شخص سمجھا جاتا ہے جسے لوگ دک الجن کہتے تھے۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، وہ راتوں کو کبھی سوتے نہیں تھے اور ان کے اشعار میں غیب، موت اور جادو کا فلسفہ بھرا پڑا ہے۔ روایتوں کے مطابق دکل جن نے اپنے ہی ہمزات کو قابو کر لیا تھا اور وہ راتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر جناتی آواز سنا کرتے تھے۔ اسلام اور اسلام سے باہر تاریخ کے صفحوں میں ایسے بے شمار پر اسرار لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نہ صرف جنات کی دنیا سے خود کو جوڑا بلکہ جنوں سے رابطہ کر کے اس غیبی دنیا کو مزید جاننے کی کوشش کی اور ان مخلوق سے علم اور مختلف عملیات سیکھے۔ جدید دور میں جنات اور غیبی دنیا سے رابطہ کرنے کی ایک حقیقی اور پر اسرار تجربہ محمد عیسیٰ داؤد نامی ایک مصری صحافی اور مصنف نے کیا تھا، جس کے دعووں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ محمد عیسیٰ داؤد دراصل مصر کا رہائشی تھا جو سال 1957 میں مصر کے شہر اسماعیلیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے روحانیات، میٹا فزکس اور مختلف اسلامی موضوعات پر بے شمار کتابیں تحریر کی۔ ان کی تحریریں خاص طور پر جنات، دجال، امام مہدی اور دیگر دلچسپ موضوعات پر موجود ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے خفیہ علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان اور جنات کے درمیان رابطہ ممکن ہے۔ انہوں نے جنات سے کانٹیکٹ کرنے کا صرف نظریہ ہی پیش نہیں کیا بلکہ خود اس چیز کا تجربہ کیا اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام حوار السیفی ما جنی مسلم ہے، جس کے معنی ہیں انٹرویو ود اے مسلم جن۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے روحانی تجربے کو لکھا ہے اور بتایا ہے کہ مختلف عملیات اور وظائف سے انہوں نے خواب میں جنوں کی دنیا میں جانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان عملیات میں انہوں نے کسی بھی قسم کا جادو، تعویذ یا شیطانی عملیات کا سہارا نہیں لیا،
बल्कि ये राबता कुरान और सुन्नत, अज़कार और पाक तरीक़ों के ज़रिया हुआ। किताब के मुताबिक लंबी मेहनत और कोशिश के बाद आखिरकार ईसा दाऊद से एक जिन ने राब्ता किया। जिन ने ईसा दाऊद से खुद ये ख्वाहिश की कि वो उसके साथ बैठना चाहता है। इसकी वजह यह है कि वो बहुत सारी गलतफहमियां जो इंसानों में जिन्नात से मुताल्लिक फैल चुकी हैं, वो उन गलतफहमियों को दूर करना चाहता है। लिहाजा उस जिन ने खुद को ईसा दाऊद के सामने जाहिर किया। वो कहते हैं कि उस जिन ने बताया कि मेरा नाम इब्ने कंजूर है और मेरे वालिद का नाम हूद था। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात की नस्ल से है। फिर उसने कहा कि मेरा दादा उन जिन्नात में से था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्नात के ऊपर शहाब साकिब गिराए गए थे, तो उसने उन वाक़यात को अपनी आँखों से देखा था, क्योंकि वो खुद आसमानों पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश किया करता था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? इब्ने कंजूर कहने लगा कि तुम कसम उठाओ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने कहा, मैं कसम उठाता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने जवाब दिया, मैं 180 साल का हूं। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि जिन्नात कितना लंबा जीते हैं। उसने बताया कि हम हज़ारों साल तक जी सकते हैं। कुछ जिन 4000 साल, कुछ जिन्नात की उम्र 5000 साल और कुछ की उम्र 7000 साल तक हो सकती है। मैंने पूछा, तुम में सबसे लंबी उम्र वाला जिन कौन है? उसने कहा, वो इब्लीस है जो सबसे कदीम है, सबसे मुअम्मर है। फिर इब्ने कंजूर ने बताया कि जब मैं बच्चा था तो मेरे वालिद एक दिन मुझे इब्लीस से मिलाने भी ले गए थे। मैंने जब इब्लीस को देखा तो मुझे खौफ आया। वो निहायत ही बदसूरत था, लेकिन वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकता था। उसकी एक लंबी दुम थी और वो कद में निहायत ही लंबा था। इब्लीस का एक बहुत बड़ा महल है जिसके अंदर उसके लाखों खादिम हैं और ये सब शयातीन में से हैं। मैंने पूछा, इब्लीस रहता कहाँ है? उसने जवाब दिया, इब्लीस का तख्त समुंदर के ऊपर है जो तुम्हारी ही दुनिया में मगरिब की तरफ मौजूद है। अगर तुम में से कोई मुसलमान उस तख्त के करीब से गुजरे तो उसे चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करे ताकि इब्लीस और उसका लश्कर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर इब्ने कंजूर ने कहा, जिन्नात के मिलने की एक और जगह वो भी है जहां ठंडे और गर्म पानी का मिलाप होता है और इब्लीस की सल्तनत भी उसी मकाम पर है। मैंने उससे उसका मजहब पूछा तो उसने कहा, मैं एक मुसलमान जिन हूँ और मैं कई ज़बानों को जानने वाला हूँ, इनमें से एक अरबी भी है, इसलिए मैं तुमसे अरबी में बात कर रहा हूँ। अलबत्ता तुम इंसानों की तरह हम जिन्नात में मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और यहूदी भी। हमारी भी इबादत गाहें होती हैं जहाँ हम जाते हैं, जबकि जो ईसाई जिन होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ईसाइयों के यहाँ सुकूनत मिल जाए। इसी तरह मुसलमान जिन एक मुसलमान के घर रहना पसंद करता है। मैंने कहा, क्या मेरे घर में भी जिन है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे घर में भी एक जिन रहता है जिसका नाम मोहम्मद है और उसकी बीवी का नाम जुबैदा है, और वो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा उनमें से कुछ तुम्हारी कुर्सियों पर सो जाते हैं, बाज़ तुम्हारे कालीन पर सो जाते हैं। ये नमाज भी पढ़ते हैं और दूसरे दीनी उमूर भी अंजाम देते हैं, और उनमें से बाज़ जिन्नात तुम्हें फजर के लिए भी उठाते हैं। मैंने उससे कहा, तुम जिन्नात कहाँ रहते हो? उसने कहा, तुम इंसान ज़मीन पर रहते हो, लेकिन ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी है और हम पानी पर हुकूमत करते हैं। हमने बड़े बड़े समुंदर में अपने शहर और बस्तियां बसाई हैं, यहाँ तक कि समुंदर की गहराई में भी हमारी बस्तियां आबाद हैं। इसके अलावा ज़मीन पर भी हमारी हुकूमतें हैं। हम सहराओं में इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। हमारी नस्लों के जो जिन्नात सहराओं में रहते हैं, हम उन्हें गौल कहते हैं। हम गारों में भी रहते हैं जहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता। पहाड़ों, वीरानों, वादियों और जंगलों में भी हमारा मिस्किन है, और तुम इंसानों के घरों के छतों पर भी हमारा बसेरा है।
फिर मैंने उससे पूछा कि इस दुनिया में जिन्नात की तादाद कितनी है, तो उसने जवाब दिया, अगर तुम हमें देख पाओ तो तुम्हें हर तरफ जिन्नात ही नजर आएंगे। मैंने कहा, तुम में अफजाइश नस्ल का तरीका क्या होता है? उसने कहा, जब हम जिन्नात 170 से 180 साल के होते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर जवान हो जाते हैं। उस वक्त हम मादा जिन्नियों से शादी करते हैं। जिन्नियाँ औरतें हामला होती हैं और 15 महीनों बाद बच्चा जनती हैं, जिनकी तादाद 7 या 8 होती है। ये बच्चे बहुत लंबी नींद सोते हैं और शोर नहीं करते। उन बच्चों के लिए भी इंसानों की तरह मकतब, मदरसे और मुख्तलिफ पेशे होते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या इंसान और जिन्नात के बीच रिश्ते का ताल्लुक बन सकता है? उसने जवाब दिया, इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी नामुमकिन है। ये सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि अगर जिन खुद को किसी इंसानी सूरत में ढाल ले, लेकिन अगर ये शादी हो भी जाए तब भी औलाद की पैदाइश इंतहाई मुश्किल होगी, क्योंकि ये दोनों मखलूक़ात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैंने पूछा, क्या तमाम जिन्नात जिस्मानी तौर पर एक जैसे दिखते हैं? उसने कहा, मुख्तलिफ जिन्नात की मुख्तलिफ जिल्द और रंगत होती है, लाल, सफ़ेद, काली, सुनहरी और भी बहुत सारे रंग के। कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं, जबकि बाज़ जिन्नात 4 पैर वाले जानवरों की शक्ल में खुद को ढाल सकते हैं, मसलन कुत्ता और भेड़िया वगैरह। जबकि कुछ जिन्नात खुद को रेंगने वाले जानदार जैसे सांप वगैरह की शक्ल में ढाल लेते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या जिस तरह तुम मेरे सामने जाहिर हुए उसी तरह दूसरे जिन्नात भी इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, जिन अगर चाहे तो खुद को तुम इंसानों के सामने जाहिर कर सकता है, लेकिन अक्सर जिन्नात ऐसा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर वो खुद को इंसानों के सामने जाहिर कर दें और वो पकड़े जाएं और उसे मार दिया जाए तो वो वाकई मर जाते हैं। फिर मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उसने कहा, हम जिन्नात उन्हें नबी मानते हैं और उन पर ईमान रखते हैं, जबकि उन्होंने हमारे बाप दादाओं को कैद किया था। और जिन्नात हज़रत सुलेमान की खिदमत किया करते थे और उनके लश्कर में भी शामिल थे। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अज़ीमुश्शान इमारतें बनाया करते थे और ज़मीन पर मौजूद अजीम इमारतें भी हम जिन्नों की ही तामीर हैं। ये थी ईसा दाऊद का इब्ने कंजूर जिन से मुलाकात और मुकम्मल इंटरव्यू। ईसा दाऊद महज तहकीक के गर्ज से जिन्नात की दुनिया के करीब गया था, लेकिन वहाँ उसे इब्ने कंजूर मिला, एक जिन जिसका ताल्लुक इसी दौर से था जहाँ इंसान और जिन एक दूसरे के राजों से नावाकिफ थे। ईसा दाऊद का इब्ने कंजूर से सवालो जवाब शायद हमेशा के लिए पर्दा राज में ही रहता अगर वो कलम ना उठाता। क्या वाकई इब्ने कंजूर ने जो कुछ कहा था वो सब सच था? क्योंकि अगर इब्ने कंजूर की बातों को कुरान और हदीस से एनालाइज किया जाए तो उसकी एक भी बातें गलत मालूम नहीं होती। तो क्या हम वाकई जिन्नात और उनकी दुनिया को लेकर आज भी गलत फहमियों के शिकार हैं? क्या जिन्नात की दुनिया इंसानों की दुनिया से ज़्यादा कदीम, ज़्यादा बाशऊर और ज़्यादा पुरअसरार है?